Yes, hello all. Last lecture I had sent you few reference videos कि जावा क्या होता है, इसका basic concepts, OOP का basic concepts. Now the best thing in Java is every concept you learn, you need to learn with the help of a program for a clear understanding. Also, अगर आपने पिछले सेमेस्टर्स में पिछले ईयर्स में अगर सी प्रोग्रामिंग एसपीए जिसको हम बोलते हैं, if you have done with that, then it will be very easy for you to understand because you are very well aware with the logic. So in this case, when you are learning Java, what you need to actually know is the syntax, the way we write कि सी में सिंटैक्स कैसे है और जावा में सिंटैक्स कैसे है, क्योंकि करना सब वही है, लॉजिक वगैरह सब वही रहेगा, स्टेप्स सारे वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे. As I mentioned before, the algorithm is same, only the writing way differs. So that is what we are going to see in Java. Now let us start with the basic programming of Java. The first program is for addition of two numbers. ना जैसे हम सी में लिखते थे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच, वैसे ही हम जावा में लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट लैंड डॉट स्टार. ये इम्पोर्ट और इसके बीच में स्पेस आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा एरर है. इम्पोर्ट जावा डॉट लैंड डॉट स्टार इज नथिंग बट अ पैकेज. ये ऐसा पैकेज है सी जैसे हम सी में प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस यूज करने के लिए stdio कॉन आयो और सब इंपोर्ट कर देते हैं हेडर फाइल्स, so that उसके अंदर के जो भी functions है, inbuilt functions है, वो अपने को available हो. So that's why we have to import packages in Java as well, where we have java.lang packages जिसके कुछ functions है वो utilize होने चाहिए. lang.star मतलब ये Java के अंदर एक language package है, उसके अंदर बहुत सारे classes available है. See, Java is object oriented, so it is all about classes and objects. तो lang के अंदर जितने भी classes available है वो सारे अवेलेबल यानी वो सारे हमें यूज करने पॉसिबल होने चाहिए, इसके लिए हम ये पैकेज लिखते हैं. java.util.star is again a language, is again a package जिसमें हम जो भी ये जो फंक्शंस है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन स्कैनर एंड ऑल हम यूज कर सके, इसके लिए हम ये यूटिल पैकेज भी इंपोर्ट कर रहे हैं. डॉट स्टार मतलब इसके अंदर के जितने भी क्लासेस है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम. So starting with the program, C में हम हमेशा लिखते थे void main. Java में will not write anything like that. As I mentioned, Java is all about classes and objects. So if you have seen previous videos, you will understand what is a class. Class is nothing but an entity. An entity जिसके बारे में आप description देते हो, जिसके बारे में आपको कुछ अगर information store करना है, you do that. You create an object to access the members of that class. So how do we do that? See over here. We have class add, तो हमने एक एडिशन का क्लास बनाया क्योंकि हमें परफॉर्म करना है वो टास्क. सो क्लास का नाम है add, उसके अंदर हम लिखते हैं public static void main string args. Now public मतलब so that it is publicly available in the sense everyone can see it. जैसे C में मेन फंक्शन से हमेशा शुरू होता है, वैसे जावा में भी मेन फंक्शन से ही हमेशा एग्जीक्यूशन शुरू होता है. Likewise in C, even in Java there is only one main function. So public is a specifier कि ये सबको अवेलेबल होगा. Static मतलब it's like already established है, it is not going to change. Void मतलब this main is not going to return anything. String argss, if any strings are passed, if any arguments are passed, that you have to accept it on the command line. Next I have declared three variables a, b and c. So integer type declare किया हुआ है, तो ये अभी हमने c में जैसे देखा था वैसे ही declare किया है int a, b and c. अब difference क्या है, वहां पे हम लिखते थे printf scanf, इसमें हम क्या लिख रहे हैं scanner sc equals to new scanner system dot in. मतलब ये स्कैनर क्लास है, ये जो स्कैनर क्लास है ऊपर जो हमने पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं उसमें से एक अवेलेबल है. स्कैनर ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाना पड़ता, सॉरी स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. As I said and I'm mentioning again and again that Java is all about classes and objects. So every class you use, you have to create an object for that class. So scanner class अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ये ऑब्जेक्ट आप अपने नाम से कोई भी दे सकते हो, बट जनरली वी राइट इट एज sc ओनली. सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद व्हेन यू राइट न्यू स्कैनर, तो ये क्या करता है, इट रीड्स इनपुट फ्रॉम java.util.scanner. एज आई सेड कि ऊपर जो हमने
मेंशन किया हुआ है पैकेजेस, उसमें जो यूटिल पैकेज है वो यूटिल पैकेज में ये क्लास स्कैनर अवेलेबल है। तो काफी लोग ऐसे java.util.scanner, java.util.this, तो अगेन एंड अगेन टू राइट लाइक दिस आई बेटर राइट इट एज util.star। डॉट स्टार मतलब स्कैनर क्लास या इसके अलावा जो भी क्लासेस है यूटिल में वो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो ये जो लाइन है वो क्या करेगा, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो रीड करने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कैनएफ का काम होता था वैसे। तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। सिस्टम डॉट इन मतलब जो भी इनपुट्स आ रहा है रीड इट प्रॉपरली। Then we have system.out.println. Now see, system.in is for reading, system.out is for printing. So system.out.println मतलब print line, वहाँ पे हम print f लिखते थे सिर्फ, यहाँ पे हम sop लिखेंगे system.out.println enter two numbers to add। तो ये सेम है जैसे आप लिखोगे, ये थोड़ा सा अनक्लियर है बट इफ यू कैन स्टिल सी enter two numbers to add, तो जैसे लिखा है वैसे प्रिंट हो जाएगा। a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट मतलब जैसे हम स्कैनएफ लिखते थे %d, इसमें हम उसकी जगह पे ये लिखेंगे। a मतलब पहला वेरिएबल जिसमें आई वांट माय फर्स्ट वैल्यू टू बी स्टोर्ड। sc डॉट नेक्स्ट इंट मतलब ये क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट यूज किया है क्योंकि स्कैनर क्लास जो है उसके अंदर नेक्स्ट इंट करके एक फंक्शन है। सो ये नेक्स्ट इंट क्या करेगा कि यूजर जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहा है, सो व्हाट इट विल डू कि ये स्कैनर क्लास इट विल चेक कि पहला इनपुट कौन सा है। नेक्स्ट इंट मतलब यू हैव टू मेक श्योर यू आर एक्सेप्टिंग एन इंटीजर वैल्यू बिकॉज यहाँ पे आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है। सो नेक्स्ट इंट फंक्शन विल चेक कि कौन सा वैल्यू आया है आफ्टर दिस स्टेटमेंट एंड दैट वैल्यू इट इज गोइंग टू असाइन टू वेरिएबल ए। बट ये जो नेक्स्ट इंट फंक्शन है वो स्कैनर क्लास के अंदर है। तो क्लास को कभी भी एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए हमने ये एससी ऑब्जेक्ट बनाया है। और बिकॉज ये नेक्स्ट इंट हमें यूज करना है तो हम इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज एससी, वो ऑब्जेक्ट यूज करके ही हम वो फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली राइटिंग b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट मतलब अगर इसके बाद भी और कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू हमें b को देनी है। सो basically what in these two lines you are doing is you are accepting values from the user, that's it. Sorry for this disturbance, just a minute. Yeah, so you are just accepting these values in a and b. नेक्स्ट है c इक्वल्स टू a प्लस b यानी एडिशन परफॉर्म करना है तो वो एडिशन किसी में स्टोर होना चाहिए, तो हमने c में स्टोर किया है। system dot out dot println, as I mentioned, every time you are going to print a statement you will write this system dot out dot println. So system dot out dot println addition is plus c, यानी c में हम कैसा करते थे, कॉमा लिख के वेरिएबल्स पास करते थे, इसमें कॉमा नहीं लिखना है, इसमें हम प्लस डालते हैं, लेकिन कब, इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट होने के बाद। दिस इन्वर्टेड कॉमा शोज दैट व्हाट यू हैव टू प्रिंट। सो इफ यू सी हियर इट इज प्रिंटिंग एडिशन इज, तो बस मुझे इतना ही प्रिंट करना है, उसके बाद क्या, वो वेरिएबल लिखने का जिसमें वैल्यू है। सो वेरिएबल इज सी, सो यहाँ पे जावा में हम कॉमा नहीं बल्कि प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। इससे कंपाइलर को क्या समझता है कि एडिशन परफॉर्म हुआ है और जो रिजल्ट है वो प्लस सी मतलब इसके साथ साथ सी का वैल्यू भी प्रिंट करना है। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स से इफ दिस प्रोग्राम रन्स, तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा एंटर टू नंबर्स। लेट्स आई एम पुटिंग हियर 1 and 2। सो a डॉट नेक्स्ट इंट मतलब इसके बाद कौन सा नंबर पहले आया, नेक्स्ट इंटीजर इज 1, सो इट विल असाइन 1 का वैल्यू टू a, सो a विल बी स्टोरिंग 1। सिमिलरली b इक्वल्स टू नेक्स्ट इंट मतलब उसके बाद का वैल्यू चेक करेगा दैट इज 2, सो b विल बी असाइन वैल्यू 2। c इक्वल्स टू a प्लस b, सो 1 प्लस 2 इज 3, सो c ये स्टेटमेंट के बाद यानी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा द वैल्यू स्टोर्ड इन c विल बी 3 and finally when you print it will print addition is 3. So this was the simplest addition of two numbers using Java. I hope that is clear. I hope there are no doubts. As and when हम करते जाएंगे concepts clear होते जाएगा. Please practice programs on your own as well.